Hello students, I welcome you again in my science class. I hope you have seen the last video of matter can change its state, in which we have discussed one very important topic, which is melting point. A temperature at which the solid is converted into liquid, means ice was converted into liquid. Ice converts itself into liquid at a particular temperature at an atmospheric pressure, and that atmospheric pressure is 1 atmospheric pressure ideally is called melting point. Melting point का मतलब होता है जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। Even I have given you the examples in the last class. So without wasting time, we should move ahead with our today's concern. First of all, I would like to give you a brief introduction about the unit system which is used. Units. So the SI unit of temperature are of two types, Celsius and Kelvin. 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. C stands for Celsius, K stands for Kelvin. So this is the interrelationship between the Celsius and the Kelvin, and both are the standardized units to measure the temperature. Throughout the world we use Celsius को use करते हैं, we do not use Kelvin, but in scientific terms we use Kelvin and Celsius both according to the requirement of the activity. So now we are going to understand one very important process. बहुत ही important process है, उसको हम समझने जा रहे हैं, but पहले इसको ध्यान में रखना. This is going to come in further minutes. So let's understand very important process which is called latent heat of fusion. What is latent heat of fusion? Latent heat किसको कहते हैं? As I told you in the last class, latent heat किसको कहते हैं? The heat which is hidden. लास्ट क्लास में हमने बताया था कि बीकर है, उसके अंदर आइस क्यूब्स आर देयर, और नीचे हम उसको दे रहे हैं हीट. Whenever we provide heat, what happens? Heat, by providing heat energy, vibration occurs, kinetic energy increases, and the state of the matter changes simultaneously or with certain amount of time according to the nature of the liquid or the solid. यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट देने से आइस मेल्ट हो रहा है. हीट देना बंद कर दिया, we stop heating this ice cube, तो भी मेल्टिंग कंटिन्यूअसली हो रहा है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो आप बीकर देख रहे हो, वो बीकर के अंदर एक ऐसी हीट थी, वो हिडन थी, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जो हिडन हीट है, वो भी हीट एनर्जी देता है. कोई भी हीट होगा वो हीट एनर्जी ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये हीट कैसी हिडन है, ये हमें दिखती नहीं है, बट इट इज देयर. हम हीट देने के बाद भी एक हीट छुपी रहती है बीकर के अंदर, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है इसका आइस का लिक्विड के अंदर, मतलब कि वाटर के अंदर. दिस इज लेटेंट हीट, एंड आई हैव गिवन यू क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास. बट आज का पॉइंट जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड उसका एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद करना बहुत ही जरूरी है. लेटेंट हीट फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ. फ्यूजन क्या है? फ्यूजन मतलब क्या है? फ्यूजन मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, when solid is converted into liquid is called fusion.
फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो याद है फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है वो समझते हैं। मैं इसका डेफिनेशन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप सबको भी ये डेफिनेशन आपकी नोटबुक में लिखना है और फ्यूजन का डेफिनेशन आपका होमवर्क होगा। यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ फ्यूजन इन योर होमवर्क। So let us understand what is the latent heat of fusion. The heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure is called latent heat of fusion। बहुत बड़ी डेफिनेशन है तो याद करने में भी थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन एक बार समझ लोगे यू वोंट बी एबल टू You don't have to mug it up, अगर आप समझ लोगे तो क्या है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है, जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, अब हीट एनर्जी देंगे 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 तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा कि हीट एनर्जी रिक्वायर्स टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मेल्टिंग पॉइंट है, और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आता है सॉलिड लिक्विड बन जाता है, सॉलिड लिक्विड बन जाता है। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी सॉलिड पर उसका वजन 1 किलोग्राम होगा और उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब ऐसी लेटेंट हीट जो फ्यूजन की प्रोसेस करती है। कैसी फ्यूजन की प्रोसेस मतलब क्या, solid into liquid, solid into liquid. So this is the process which you must remember and this is the definition for the exam. ये एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आ सकता है, very important definition to remember. Okay, so I hope you have understood it, and if you do not have understood it, watch it again, watch 2 to 3 times, and then if you have doubt, please ask me, I will solve your doubt. So लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो था वो हमने अभी कंप्लीट किया कि क्या है। लेटेंट हीट के बाद हम लोग हमारी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। कौन सी एक्टिविटी, वही जो आपने YouTube वीडियो में मैंने मेरे घर पर जो की थी वो एक्टिविटी कि पहले क्या लिया था, आइस 150 ग्राम आइस लिए थे बीकर के अंदर, इसको गर्म किया, अब वो बन गया है लिक्विड, मतलब बन गया वाटर। बट वाटर बनने के बाद भी हमें रुकना नहीं है, वी डू नॉट हैव टू स्टॉप। ओके, ये वाटर है और अगेन यहाँ से हमें क्या प्रोवाइड करना है, हीट प्रोवाइड करना है। हीट प्रोवाइड करे जा रहे वाटर का क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर हो गया 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हमने क्या रखा है, यहाँ पर है हमारे पास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, बिकॉज उसके अंदर एक मेटल है जिसको कहते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज देयर एंड मर्क्यूरी इज देयर, its role is to what, its role is to expand। मर्क्यूरी है ना, एक्सपांड होता है, लंबा होता है, तो जैसे वो टेम्परेचर उसको मिलेगा ना वो एक्सपांड होता जाएगा।
We will understand this particular concept in third chapter, so do not worry about that. But thermometer एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है. ओके, टेम्परेचर बढ़ाता है. तो टेम्परेचर बढ़ा 75 थर्मोमीटर ने बता दिया. ओके, 75 हुआ, धीरे धीरे पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस. जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा वो उबलने लगेगा, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग. और जैसे ही बॉइलिंग होता है वाटर अपना स्टेट चेंज करता है और बन जाता है वाटर वेपर. बन जाता है वाटर वेपर. तो वाटर वेपर बन जाता है, वाटर जो होता है वो वाटर वेपर बन जाता है. दिस इज द वेरी यूनिक प्रोसेस, बट वी कैन ऑब्जर्व दिस ऑन एवरीडे लाइफ. अगर आपके घर पे गर्म पानी करते हैं, अभी तो कोरोना वायरस का जो सीजन चल रहा है उसकी वजह से वी हैव टू टेक कंटिन्यूअस स्टीम लेनी पड़ती है. 2 टाइम तो स्टीम लेना ही चाहिए, जिससे हमारे नाक में अगर कोरोना वायरस के जो वायरसेस के जो भी कुछ टुकड़े हैं या फिर वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो इजीली हीट से मर जाएंगे. तो ये प्रोसेस हम हर रोज की जिंदगी में करते हैं. इवन तो हमें चावल बनाना है तो भी पानी को उबालना पड़ता है. तो ये उबालने की जो प्रोसेस है दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर. वाटर वेपर कब बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. कौन बताता है 100 डिग्री सेल्सियस? थर्मोमीटर. कैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है? हीट देते हैं तब. सिंपल इज दैट. हीट देंगे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वाटर का टेम्परेचर एक पॉइंट पर आके रुक जाएगा. ये है 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ? व्हाट अकर्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस? एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू liquid. Sorry, water is converting into water vapor. Water is converted into gas form. Means liquid is converting into gas form, which is a phenomena. एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है. तो ये प्रोसेस को हम थियरी के बेसिस पर समझते हैं. क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन में क्या होता है? तो वेपोराइजेशन में होता है बॉइलिंग. क्या होता है? बॉइलिंग. तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. जैसे मेल्टिंग पॉइंट है वैसे बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट इज द डेफिनेशन? टेम्परेचर at which water boils and gets converted into. वाटर की जगह हम क्या लिखते हैं? लिक्विड. टेम्परेचर at which liquid boils and gets converted into gaseous state at atmospheric pressure is called boiling point of that liquid. अभी लिक्विड कौन सा है? वाटर. तो वाटर जो है वो क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है. आप देख सकते हो टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स. लिक्विड गर्म होता है. कौन सा? कितना टेम्परेचर है? तो 100 डिग्री सेल्सियस. कौन सा लिक्विड बॉइल हो रहा है? वाटर. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइल होता है और किसमें कन्वर्ट होता है? गैसियस स्टेट. उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. आइस का मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस. दिस वाज द प्रोसेसेस व्हिच वी मस्ट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, हमने पढ़ा लेटेंट हीट, हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट.
और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ओके, सो वेपोराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड जो होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऐसी है जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी सारे हमारे घर के रेगुलर वर्क्स जो होते हैं वो कर पाते हैं। तो यही चीज़ों को, घर के आसपास की चीज़ों को ही, क्योंकि वही मैटर है, मैटर सराउंडिंग अस, तो हमारे आसपास जो भी मैटर है, द मैटर व्हाट इज दैट मैटर डूइंग, दैट वी आर स्टडीइंग। तो मैटर जो कर रहा है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। So this is not the new concept, but we are understanding matter at a different aspect. दूसरी अलग तरीके से साइंटिफिक वे से हम लोग समझ रहे हैं, because we are learning science. Okay, so एक दूसरी डेफिनेशन है, जैसे latent heat of fusion था, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे latent heat of vaporization. इसके अंदर भी सेम डेफिनेशन, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस है। दिस डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन द बुक, वी हैव टू फॉर्म दिस डेफिनेशन। तो हम लोग हमारे वर्ड में भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट हैव टू वरी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, स्लाइड मॉडिफिकेशन है। इफ यू हैव अंडरस्टूड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आना ही चाहिए। तो दी heat energy required to convert 1 liter of liquid into gaseous state at its boiling point at atmospheric pressure is called latent heat of fusion. हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी, लेटेंट हीट मतलब क्या, छुपी हुई हीट, तो वही हीट को हमें यूज करना है। हीट एनर्जी के बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा। विदाउट हीट एनर्जी नो मैटर कैन चेंज स्टेट। ठीक है, तो हीट एनर्जी तो देनी है, तो कैसी हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी चाहिए? 1 लीटर। पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 kg था, इसमें है ना लिक्विड है तो लिक्विड का यूनिट लिखना पड़ेगा 1 लीटर। 1 liter of liquid into gaseous state. We have to convert it into gaseous state. तो ये gaseous state में जो convert करने की जो process है at its boiling point, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का boiling point है, उसी तरह से कोई भी liquid का एक boiling point होगा। हमें वो boiling point पे वही atmospheric pressure पे, atmospheric pressure मतलब हमारे आसपास जो atmosphere है अर्थ का, उसका जो pressure है उसको हम बोलते हैं atmospheric pressure। तो वो atmospheric pressure पे जब हम convert करेंगे किसको, लिक्विड को गैस में, उसको हम कहेंगे latent heat of fusion. Okay, so this is the definition. Please note down this definition. Pause your video and note it down if you have not noted it down, because this is very important. It is not given in the book. तो please note it down। और बहुत ही important process है। फिर से मैं आपको repeat करूँगा, एनर्जी देनी पड़ती है जब मैटर को स्टेट चेंज करना होता है। कौन सा एनर्जी देना है? हीट एनर्जी देना है। हीट एनर्जी क्यों देना है? क्योंकि हमको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो हीट एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी अपना काम करेगा। हीट एनर्जी क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, वाइब्रेशंस बढ़ा देगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है ना वो बढ़ा देगा। और उतना एक चीज याद रखो, जब भी मॉलिक्यूल्स, मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह कम ज्यादा होती है ना, तो स्टेट चेंज होता है मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा है, लिक्विड जो है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी जगह प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रोसेस टू रिमेम्बर। ओके, तो हमने अब तक क्या देखा? हमने एक सिंपल चीज एक्टिविटी से समझी। कौन सी एक्टिविटी? जो हमने बीकर को लेकर की थी। उससे हमने क्या देखा कि सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा? जब उसको मिलेगी एक लिक्विड गैसियस स्टेट में कब कन्वर्ट होगा? जब उसको मिलेगी एक गैसियस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा? जब उसको करेंगे लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा? उसको करेंगे। मतलब टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, टेम्परेचर एक क्या है? फैक्टर है जो जिसको कम ज्यादा करेंगे तो मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा। पानी का जो लिक्विड है, पानी का टेम्परेचर कम कर दिया, वो बन गया आइस, वो बन गया सॉलिड। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, बन गया लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, बन गया। So in this way, temperature plays an important and essential role in which the matter changes its state from solid, liquid, and gas. And again, if temperature slows down, gaseous to liquid, liquid to solid. Very important process to understand and very easy if you follow this particular chapter. जो already बुक में भी दिया है, but ये समझना जरूरी है। Temperature factor. तो अब तक हमने क्या समझा? हमने टेम्परेचर को एक फैक्टर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, उसमें हमने टेम्परेचर का रोल देखा। ओके, कि टेम्परेचर कैसे अपना रोल प्ले करता है मैटर के स्टेट्स चेंज करने। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अनदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ Celsius into Kelvin and Kelvin to Celsius। हमारे बुक में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे मैथमेटिकल एग्जांपल पूछे हैं कि कन्वर्ट करो सेल्सियस टू केल्विन। क्लास स्टार्ट होने से पहले हमने एक चीज समझी थी, क्या? कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है is equal to 273 केल्विन हमेशा होता है। उसका मतलब ये कि ये बढ़ेगा ना तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम, क्योंकि दोनों इक्वल है। सिर्फ दोनों का मेजरमेंट दोनों का जो नंबर्स है वो चेंज दिखा रहा है कि जब 0 डिग्री होगा ना तो 273 केल्विन होगा, तो सेल्सियस 5 होगा तो इसमें चेंज आएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी कुछ रिलेशन चेंज होगा। ठीक है, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस टू केल्विन क्या करते हैं? समझ लो 35 डिग्री सेल्सियस बोला है, क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, convert this 35 degree Celsius into Kelvin। केल्विन में कन्वर्ट करना इसको। सीधी बात आपको बता दूं, ज्यादा मैथमेटिकली हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे। क्या हो करना है? सेल्सियस टू केल्विन है तब हमेशा प्लस करना है। जब भी सेल्सियस से केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन पढ़ेंगे तब प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 35 है, 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा? 35 प्लस 273 इज इक्वल टू क्या होगा? 538 10 308। मतलब क्या किया? जब 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 35 प्लस 273, क्योंकि 273 0 डिग्री है तो
तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 है तो 35 कैसे होगा? तो 0 से 35 हो गया तो 273 से भी 35 ज्यादा होगा तो इसलिए 35 बढ़ा दिया। तो दिस इज द आंसर 308 केल्विन। ओके, फिर से बता देता हूँ, जब भी सेल्सियस दिया हो और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो यू हैव टू फॉलो प्लस साइन, प्लस करो। ओके, किससे प्लस करो? 273 से प्लस करो, 273 से प्लस करो। क्यों 273 से प्लस करना है? क्योंकि 273 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो 35 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 35 ऐड करने पड़ेंगे, तो 273 प्लस 35 कर दिए, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया। ओके, तो अब हम करेंगे केल्विन टू सेल्सियस। केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन दिएंगे ना तो केल्विन हमेशा ज्यादा अमाउंट में देंगे, जैसे कि बता देता हूँ 400 केल्विन दिया है और सेम क्वेश्चन कन्वर्ट दिस इनटू सेल्सियस, तो कुछ नहीं करना है, जो केल्विन दिया है ना उसमें से क्या करना है, साइन चेंज करनी है, माइनस क्या करना है 400 माइनस 273। ओके, 400 माइनस 273 समझ में आया? तो आपको इसका आंसर ढूंढना है, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इसके आंसर ढूंढना है। दूसरे मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपको करने हैं, जो अभी मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, लेकिन वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। दूसरा क्या है, तो 373 केल्विन, 255 केल्विन, 108 केल्विन, ओके, फिर 93 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस और 67 डिग्री सेल्सियस। ये जो केल्विन वाला है ना उसको सेल्सियस में करना है और सेल्सियस वाला है उसको केल्विन में करना है। दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, प्लीज सबमिट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये सबमिट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। प्लीज सबमिट इट एंड डू इट, प्रैक्टिस करना। आई होप आपने ये लिख लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड।